ایم کیو ایم رہنما کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ سندھ کے شہری علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے لیے ہم ایوانوں میں آوازیں اٹھاتے رہتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اس کے لیے جہاں جہاں اور جیسے جیسے ہمیں ضرورت پڑے گی ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ تو ہماری لیگل ایڈ نے، اور خاص طور پہ ہمارے وکیل طارق منصور ایڈوکیٹ نے، جو کہ ماشاءاللہ ہر ایسے مسئلے پر عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں جو کہ میرے اور آپ کے اور عام شہریوں کے مسئلے ہیں۔ اسی حوالے سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ایک اور شب خون اس شہر پہ مارا جا رہا ہے، اور وہ اس کے مستقبل پہ مارا جا رہا ہے، اور اس کے ماسٹر پلان کو اپنی مرضی سے کرپشن کے پلان میں تبدیل کرنے کی کوئی سازش کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے نہ صرف ہم نے قانونی چارہ جوئی شروع کی بلکہ عوامی مہم کا بھی آغاز کیا، اور ایم کیو ایم کے ہزاروں کارکن اس میں شریک ہوئے۔ آج اس مہم کا آخری دن تھا، اور آج ہمارے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد اسی حوالے سے یہاں جمع ہے۔ وہ کام جو تقریباً 1 مہینے سے وہ کر رہے تھے، آج آخری دن تھا، ہم نے بلایا تھا، لیکن یہ کام جس کامیابی کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں پورا شہر شریک ہو۔ اس لیے ہم اس میں ایک تو 10 دن کا اضافہ کر رہے ہیں اس پوری مہم میں، اور آج کے اس محفل کو بلانے کا، آج کارکنوں کا یہاں اجتماع اسی غرض و غایت کے تحت ہوا ہے۔ اور آپ سے گفتگو کا اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان اس حوالے سے کس جافشانی کے ساتھ، کس یکسوئی کے ساتھ اس شہر کا مقدمہ ایک طرف ایوانوں میں، دوسری طرف عدالتوں میں، اور ضرورت پڑی تو سڑکوں پہ بھی لڑا جائے گا۔ نوشتہ دیوار چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ اس شہر پر 17 ایک جعلی اکثریتی حکومت کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک وفاقی حکومت ہے اور ایک صوبائی حکومت ہے، اور تیسری حکومت جس کی کوئی اوقات نہیں رکھی گئی ہے۔ آج متحدہ قومی موومنٹ کے پاس براہ راست کسی بھی حکومت کی سربراہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم نے اس حکومت میں رہ کر اس شہر کے تباہال انفراسٹرکچر کے لیے کراچی اور حیدرآباد شہر، جہاں پہ ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، اور وہ سندھ کے باقی This half-hourly clock is brought to you by گلوکو، جس میں ہے گندم اور مکھن کی غذائیت، اور کیلشیم جو بنائے تمہیں اسٹرانگ، and 1 سے 3 سال کے بچوں کے لیے اسپیشلی ڈیزائن کیا نیسلے نیڈو 1+۔ اسی آج کی ایم کیو ایم کی وجہ سے وہاں پر ایک یونیورسٹی قائم ہے، اور اس شہر میں جہاں پہ جامع کراچی کے بعد کوئی یونیورسٹی نہیں بنی، کچھ کالجوں کو اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا ہے۔ الحمدللہ وفاق کی کئی یونیورسٹیاں یہاں آئیں گی۔ اس پہ تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ بھائی اس شہر کی زمین ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس صوبے میں ضمیر سے کام چلتا نہیں ہے۔ ہمارے پاس ضمیر کی جو طاقت اور دولت ہے، اس سے کم اس صوبے میں کام چلتا نہیں۔ زمین کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کرنی شروع کر دی ہے اس شہر کے بیچ میں، کیونکہ اس شہر کے باہر زمین حاصل کر ہم اپنے ان پروجیکٹس کو ناکام کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ان ترقیاتی کاموں کو ایم کیو ایم کے ایم این ایز، ایم پی ایز مل کر مانیٹر کر رہے ہیں۔ اب ہماری
यहाँ की मरकज़ी कमेटी भी उस पर नज़र रखी हुई है और इस हवाले से अवामी मुहिम हमने रखी है ताकि लोगों को इसकी आगाही दी जा सके। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में आपको पता है कि दो हमारे ऐसे मुतालबों में बड़ी चीखो पुकार मची हुई है और दोनों मुतालबे आइन में दर्ज हैं। आइन में आइनी मुतालबों को ये अय्याशी पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों को है कि आइन के जिस शिक पे चाहें अमल करें और जिस शिक पे चाहें अमल ना करें। ये चॉइस कभी किसी और जेन्युइन जमहूरियतों में किसी हुक्मरानों को हासिल है? तो हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत है और जहाँ जागीरदाराना निज़ाम हो वहाँ जमहूरियत हो ही नहीं सकती। ये मुमकिन ही नहीं है कि जागीरदाराना निज़ाम भी हो, वहाँ जमहूरियत भी हो, वहाँ तालीम भी हो, वहाँ तरक्की भी हो। तो एक तो पूरी मुहज़्ज़ब दुनिया में जेन्युइन जमहूरियतों में कामयाब ममालिकों में सबसे मजबूत अगर कोई हुकूमत है वो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है। बरतानिया में तो पहली टियर की है और थर्ड टियर जिसे कहते हैं वो है, सेकंड टियर है ही नहीं। और जो बल्दियाती हुकूमत है, जो शहरी हुकूमत है, जो देही हुकूमत है, जो ज़िले हुकूमत है, उसको आइन का तकाजा कहता है कि उसको कायम होना चाहिए। तो ये अब हमारे साथ साथ मीडिया की जिम्मेदारी भी है जो ये बताए कि वाहिद रास्ता जिसके ज़रिए जमहूरियत के सम्राट आम पाकिस्तानियों तक पहुंचने चाहिए, उस पर रुकावट कौन बन रहा है? सबसे बड़े जागीरदार हैं या जो सबसे बड़े जमहूरियत के चैंपियन हैं? इसके साथ साथ आइन का आर्टिकल एक ये भी कहता है एक और तकादा ये भी करता है, आइन के आर्टिकल जो आइन बनाने, जो मजीद सूबे बनाने की बात करता है, तकाजा करता है, इख्तियार नहीं दे रहा, वो तकाजा करता है कि जब आबादी बढ़े, जब ज़रूरत बढ़े, तो जिस तरह डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न में इजाफा होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल फारूक भाई? 239। तो कोई आइनी शिक पर अमल करे वो गद्दारी हो सकती है? 140 ए आइन का हिस्सा है, इस पे इम्प्लीमेंट ना करना गद्दारी है। आर्टिकल 7, 32 सब है। और सूबे बनाने का ये अख्तियार इस आइन में भुट्टो साहब के दौर से है। ये भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी आज किसके हाथ में है? जो इस मुतालबे को जो आइन में उस वक्त के सारे ज़ोमा ने डलवाया था, उसको गद्दारी क्या? जहां तक 140 का ताल्लुक है, आपको ये पता होना चाहिए कि 26वीं तरमीम में भी जहां पे तमाम दूसरी पार्टियां वफाक को ब्लैकमेल कर रही थी, अपने ज़ाती और सियासी मफादात के बारे में मुज़ाकरात कर रही थी, वहां पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक ही शर्त रखी थी 26वीं तरमीम के वक्त भी, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, न ज़ाती तौर पे, न सियासी तौर पे, न तंजीमी तौर पर। आप पाकिस्तान के अवाम को उसका हक जो आइन में दर्ज है वो दें। पानी पीने का पानी हो, निकासी आब हो, सड़कें हो, गलियां हो, उसकी तामीर करने का हक उनको, उसकी तामीर ही नहीं, उसकी तामीर करने का हक गली और मोहल्ले के लोगों को। ऐसी जमहूरियत का पाकिस्तान की आवाम समेत किसी को ज़रूरत नहीं है जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों तक ना पहुंच पाए। तो MKMY तारीख की सफ़ात पे ये दर्ज होना चाहिए और आपको गवाह बना के कह रहे हैं। हमने इस मौके पे कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की। हमने 140 से उस वक्त
तमाम सियासी जमातें उससे गुरेजा नजर आती थी, लेकिन हमने उस मुखालफत को अपने लिए मजबूरी नहीं समझा, अपनी आवाज बुलंद करते चले गए। आज ऐवान में हम खड़े हैं तो एक जमात के अलावा तमाम जमातें हमारे साथ नजर आ रही हैं। अगर वोटिंग करा दी जाती तो ये आपका हक, ये का आम मजदूर का हक, एक आम किसान का हक, एक कैमरामैन का हक, एक सहाफी का हक, एक छोटे दुकानदार का हक, वो इस आइन के तहत, आइनी तकाजे के तहत और एमक्यूएम के मुतालबे के तहत इसकी फराहमी मुमकिन बनाई जा सकती थी। आपसे आज बात करने का असल मकसद ही यही है कि आप गवाह रहिएगा। हमने आम पाकिस्तानियों के लिए, अच्छा एक और बात है, आज के वक्त में, इस वक्त आज की सियासी सूरत हाल में इस मुतालबे से एमक्यूएम को क्या मिल रहा है भाई? ना हमारे पास बल्दियाती हुकूमत है, ना सूबाई हुकूमत है, ना वफाकी हुकूमत है। हमने ये मुतालबा जब डाला था, ये उस वक्त जब हम ये मुतालबा कर रहे थे तो बाबाए शहर नेमतुल्लाह एडवोकेट थे जमात इस्लामी के। हम कह रहे थे जमात के मेयर को, जमात के नाजिम को ताकत दें, और आज हम कह रहे हैं पीपुल्स पार्टी के मेयर को आप ताकत दें। जो बम्बई के मेयर के पास है, जो बीजिंग के मेयर के पास है, हम नहीं कह रहे न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस के मेयर जैसी ताकत दीजिए। मनीला को देख ले, बैंकॉक को देख ले, फिर देख ले कराची की आबादी कितनी है और उसको कितना मिल रहा है। कराची लूट का माल नहीं है जनाब। जो आप समझते हैं कि आपके पास नहीं रहा था, आप भूखे मर जाएंगे जनाब। इस सूबे में दो तबके हैं, एक वो कराची 97% सिंध के बजट का देता है, बाकी 3% हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर। एक तरफ वो है जो 100% आपका बजट बना के दे, दूसरे वो है जो 100% बजट को खर्च करे। जो 100% दे, 1% उनका इख्तियार नहीं है। जो 1% भी नहीं दे रहे, उनका 100% इख्तियार है। इस तरह घर चलते हैं, घर तकसीम हो जाते हैं, खानदान तकसीम हो जाते हैं। एक कराची के लोगों का सिंध के शहरी इलाकों का मुकद्दर नहीं बनने देंगे इसको, इस नाइंसाफी को। अगर ऐवान हमें इंसाफ फराहम नहीं करेंगे और अदालतें भी नहीं करेंगी अगर, तो हम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे, सड़कों पे जाएंगे, गली गली में जाएंगे, आवाम से बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि आज हम बात क्यों कर रहे हैं। हमने पहले सियासी जमातों से मुज़ाकरात करें। एक और बड़ी अहम बात करूं मैं कि लोग कहते हैं आप भी मुजरिम हैं 18वीं तरमीम के। तो मुजरिम है तो क्या एमक्यूएम आज भी मुतालबा कर रही है कि 18वीं तरमीम को ख़त्म कर दो? हम तो कह रहे हैं नहीं, हम तो कह रहे हैं 18वीं तरमीम पे मुकम्मल अमल किया जाए। हम इस गुनाह में इसलिए शरीक हुए थे 140 में ए लगा सके, अवाम को लगा सके, उसकी तशरीह कर सके। जब बात नहीं बनी तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए, हम अकेले हैं, और हमने मजबूर किया उस वक्त की वफाकी हुकूमत को हमारे पीछे आओ। लेकिन हमारा मुकदमा था, वो अपना मुकदमा अलग लेके गए, हम अपना मुकदमा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने हमेशा हमेशा के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अपने पाकिस्तान की आवाम के हक, ये फैसला एमक्यूएम के हक में नहीं हुआ है, ये पाकिस्तान की आवाम के हक में हुआ है, पाकिस्तान की जमहूरियत के हक में हुआ है, पाकिस्तान के आइन के खातिर हुआ है। ये फैसला पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए हुआ है, पाकिस्तान की लाखों यूसीज के लिए हुआ है। 123, 130, 35, 40 जो छोटे बड़े शहर हैं उनके लिए हुआ है, जितने जिले हैं उनके लिए हुआ है, जितने डिवीजन हैं उनके लिए हुआ है, जितनी गलियां हैं उनके लिए हुआ है। ये कराची के लिए नहीं हुआ है, हैदराबाद और मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्कर के लिए नहीं हुआ है, ये लाड़काना के लिए भी हुआ है,
ये नौशेरा फिरोज के लिए भी हुआ है, ये पिशावर के लिए भी हुआ है, ये रुतरडेरो के लिए भी हुआ है, ये मालाकंड के लिए भी हुआ है, मस्तूम के लिए भी हुआ है, मियां चुन्नू के लिए भी हुआ है। तो पाकिस्तान का मुकदमा सिंध के शहरी इलाकों के नसीब में आया है, एमक्यूएम के नसीब में आया है। और एमक्यूएम के एमएलएज ने जिस तरह मिलकर इस मुकदमे को लड़ा है, आज जाली अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया हो। हमने सियासी अजहान को, जहनों को मुतासिर किया है। आने वाले वक्त में हम कहते हैं कि आप सिर्फ 140 को जो इस असेंबली से पास होकर स्टैंडिंग कमेटी में उसको बैठाएं ना, उसको उठा के लाएं ऐवान में और काउंटिंग कराएं। एमक्यूएम एक्सपोज हो जाएगी 22 सीट, लेकिन 22 तो मिलेंगे। तारीख गवाह तो रहेगी कि 22 लोगों ने वोट दिया है। हो सकता है पाकिस्तान के अवाम के जानिब से मुंतखब इन लोगों का शायद पाकिस्तान की अवाम के खौफ से और खुदा के खौफ से उनका ज़मीर जागे और आप पूरा पाकिस्तान कामयाब हो जाए सोच की वजह से। ये सेनेट में हो चुका है, कौमी असेंबली में हो चुका है, अब अवाम के सामने ले जाने के लिए ये सारे मौजूद हैं उनके कारकुन। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई। और इसके साथ साथ आपको पता है कि आप बड़ी मुश्किल से, ये बताना भी बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, जिन शहरों को 17 साल से मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर दिया गया है, और कराची वो शहर है, वो बैठ गया तो पूरा मुल्क बैठ जाएगा। उसके लिए हमने इस हुकूमत से मुआहदा किया था, कराची पैकेज लिया था, हैदराबाद पैकेज लिया था। उसमें ताखिर क्यों हो रही है? हमारी नालायकी से, या कोई रुकावट डाल रहा है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है हुकूमत, और हुकूमत को भी मुतनबर कर रहे हैं। अगर आपने ब्लैकमेलिंग में आना है तो हमें बताइए, ताकि हम अपना फैसला करें। अगर आप हक के साथ नहीं खड़े हो सकते, उसूल के साथ नहीं जुड़े रह सकते, तो बताइए, फिर हमारी क्या ज़रूरत है आपको? हम आपकी हुकूमत को नहीं गिरने देंगे, लेकिन हम ऐसे गुनाह का भी हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे अब आपको कुछ ना मिल रहा हो। 40 अरब का आज की एमक्यूएम ने कराची के लिए और हैदराबाद के लिए अलग तकरीबन 50 अरब का पैकेज लिया है, एक एक करके। अब ये ज़मीन पे ये काम उतर रहा है, गड्ढे खोदे जा रहे हैं, और कौन से काम हो रहे हैं याद रखिएगा, वो काम जो वफाक के कराने के नहीं है, जिसका आप टैक्स सूबाई हुकूमत को देते हैं, पानी का टैक्स सूबाई हुकूमत को देते हैं, हम इस पैसे से केएमसी को देते हैं। केएमसी तो अब आ गई जैसी है, जितनी भी है। निकासी आपका काम हम कर रहे हैं, जो सूबाई हुकूमत और बल्दियाती हुकूमत को करना है। पीने का पानी का हम कर रहे हैं, गलियों और सड़कों का हम कर रहे हैं। हमें तो बड़े बड़े ब्रिज बनाने चाहिए, तालीमी इदारे बनाने चाहिए। वो पैसे जो तालीम और सेहत पर खर्च होना है, हम उन पे लगा रहे हैं जो ज़मीन में दफन हो जाएंगे, नज़र भी नहीं आएंगे। हम अपने तख्ती लगाने के भी हक़ में नहीं होते। सियासत हमारा कारोबार नहीं है। खुद नुमाई से बचना एमक्यूएम की पूरी पहली तालीम है। अपने काम का क्रेडिट, दूसरे के काम की क्रेडिट को चोरी करना हमारा काम नहीं है। ये एमक्यूएम ने लिया था, तने तनहा लिया था, लड़के लिया था, पाकिस्तान में जमहूरियत के क़याम के लिए उसके तकाजे के तौर पे लिया था, ब्लैकमेल करके नहीं लिया था। उस शहर के लिए लिया था जिसकी वजह से पाकिस्तान, कराची, बार बार कहते हैं कराची चलता है तो ये मुल्क पलता है। हम इसकी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हमारे अजदाद ने बनाया था, उसको संभालना, सजाना, संवारना और कायम रखना और इस्तेकाम देना हमारी जिम्मेदारी है। हम यकतरफा तौर पर यह जिम्मेदारी पूरी करते रहेंगे। पाकिस्तान की खुशहाली का मकसद है पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की खुशहाली। पाकिस्तान की आज़ादी का मकसद है पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के एहसास आज़ादी।
तो इंशाअल्लाह ताला इस पे रुकावट आती रहेंगी, हम ये रुकावट दूर करते रहेंगे, जितना भी है जैसा भी है करते हैं हम इस तरह उसके की लिए आगे जहाँ पूरा जहाँ करते और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे और कानूनी चाराजोई करेंगे। मुस्तफ़ी हजरात, मैं दोबारा तो हमारी लीगल एड है, खास तौर पे सिंध के शहरी हमने इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, ये जिनके लिए मास्टर हम प्लान का ऐवानों में की आवाज़ें जद्दोजहद की है, उठाते रहते मैं हैं, सिविल सोसाइटी से भी कहता हूँ, बातचीत करते हैं, मुखला से भी उसके कहता लिए हूँ, जहाँ जहाँ और जैसे मुख्तलिफ जैसे हमें मजदूर ज़रूरत यूनियनों से भी पड़ेगी कहता हूँ, हम तुलबा से और अदालतों तालबात का से भी कहता दरवाज़ा हूँ, आइए खटखटाएंगे हमारी और कानूनी इस चाराजोई करेंगे। मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा बनिए। आज एमक्यूएम की पूरी क़यादत और सिंध के गवर्नर दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, हम सब मिलकर सड़क पर उतर रहे हैं, अवाम के दरमियान जा रहे हैं, इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को। कोने कोने पर हम जाएंगे, अवाम से रब्ता करेंगे, अपने तरक्याती कामों को भी देखेंगे और अवाम के हुकूक की जद्दोजहद भी रखेंगे।